Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine. It's my third lecture. The lecture is about class 7th. I hope that you will have interested while watching this video. So let's we start today's topic. It is fraction. तो आज हमें पता होना चाहिए कि fraction किसको कहते हैं. In previous classes we have learned about fractions. मैं इसमें दो डेफिनेशन आपको दूंगा. सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास if we have an apple, I will understand you fraction with the help of an example. That is, suppose we have an apple. अगर हमारे पास एक apple होगा, suppose this is the whole, this apple is whole, we can say it is whole, and I have to distribute this apple into 2 or 3 equal parts. Suppose I am distributing the apple into 2 parts. I am distributing the apple into 2 parts. So मैंने इस एप्पल को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में तकसीम किया है. So this part and this part, these are the fractions. These are the fractions because I have divided this whole into 2 parts. So we can say, according to this very example, we can say a fraction is a part of whole. A fraction is a, this is for the previous class definition. A fraction is a part. A fraction is a part of whole. होल हमारे पास वो एप्पल था और इसके बाद मैंने उसको 2 हिस्से किए और जो 2 हिस्से हैं these are the fractions. A fraction is a part of whole which can be expressed into equal parts. Yeah, मतलब this is for the previous class student. This is for the lower class student. This definition. So for the main definition of fraction is concerned, we can say a fraction, it is a whole number. It's a whole number which can be expressed in the form of a divided by b. A fraction can be, and those numbers, we can say those numbers which can be expressed in the form of P or Q or A divided by B, where B is not equal to 0 and A and B belongs to whole numbers. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इट इज़ रिलेटेड टू रेशनल नंबर, पर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन होता है इट कैन ऑल्सो बी, इट इज सेम एज रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर में क्या होता है, वहाँ पे जो ए एंड पी एंड क्यू होता है दे बिलोंग्स टू इंटीजर्स. यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है these are simply, we can say these can be expressed in the form of a divided by b, where b is not equal to 0, but here a and b belongs to whole numbers. तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन है दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाई b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कमा b बिलोंग्स टू होल नंबर्स. अब यहाँ पे पता होना चाहिए हमें, दिस इज फॉर द लोअर क्लास, हमें पता होना चाहिए a डिवाइड बाई b, व्हाट इज a एंड व्हाट इज आवर b. सो हियर a मीन्स न्यूमरेटर, a को हम न्यूमरेटर कहते हैं और b को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. b को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो यहाँ तक एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन है. फ्रैक्शन हम ये कहेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ होल और ए कलेक्शन. सपोज इफ अगर हमारे पास होगा वी हैव अ कलेक्शन ऑफ शुगर, आई कैन अंडरस्टैंड यू अगेन इट विद अनदर एग्जांपल. समटाइम्स यू मे बी कंफ्यूज्ड दैट it may not be the sometimes part of whole. सपोज अगर हमारे पास शुगर होगा, इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ शुगर, हमारे पास शुगर होगा, वी हैव द सैग ऑफ शुगर. सपोज अब इस शुगर में मैंने कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा यहाँ पे रखा है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, वी कैन से दिस इज द फ्रैक्शन, वी कैन से दिस इज फ्रैक्शन. तो हम ये भी कहेंगे a fraction is a part of whole or a part of collection divided into equal parts. अब हम लिखेंगे types of fraction. फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं. पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन.
दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, जिसका फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसका जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो सपोज अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर आपको कहा गया कि 3 डिवाइड बाई 4 ये कौन सा फ्रैक्शन है, सो यू कैन इजीली से दैट 3 डिवाइड बाई 4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन because 3 is smaller than 4 and 3 is the numerator whereas 4 is denominator. We can have many examples. Suppose you have 1 divided by 7, you have 6 divided by 9. These are the examples of proper fraction. तो proper fraction में क्या होता है, numerator smaller होता है denominator से। इसके बाद improper fraction, ये भी whole numbers होते हैं, याद रखना। इसके बाद improper fraction होता है। improper fraction में क्या होता है, जो numerator होता है इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। इसमें न्यूमरेटर होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से। सपोज एग्जांपल में दूंगा आपको, इफ वी हैव 12 डिवाइड बाय 3, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव 20 डिवाइड बाय 16, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम एक और फ्रैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, द थर्ड वन इज दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन भी एक किस्म का फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। हमेशा याद रहो, बिकॉज इफ वी जस्ट गेस अबाउट यूनिट, यूनिट मीन्स 1, सो वी कैन से अ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन you can write its definition in your notebooks, a fraction whose numerator is 1 is called a unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज एग्जांपल मैं दूंगा आपको, अगर आपको कभी एग्जाम में आएगा 1 डिवाइड बाई 7, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 9 एटसेट्रा, ये कौन से फ्रैक्शन है, तो आप वहाँ पे लिखोगे दिस आर यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शनर्स। होप you have got this video, got this lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Thanks, have a nice day.